अगला स्टेशन सिजजी है. The next station is Syzygy. Beware of the tipping time. Sorry? You know how back in school when your mom used to wake you up saying that the bus leaves in 10 minutes? So now you wake up burdened with the pressure of making it on time. Only you're still exhausted because you were up all night playing video games, but then an idea strikes you. What if you could sleep for exactly 2 more minutes? That way, you would wake up as fresh as you possibly can. But now, the timing needs to be perfect. Go even a second over those 2 minutes, game over, the bus leaves. Still couldn't get you. The point is that timing is everything. Just like the dipping time of the biscuit in your chai. Shit. Here comes my favorite part. You know the chai is fucked now. So you'll try to save the old biscuit. You'll also try to use another biscuit to save the old biscuit. It's all a mess now. It's too late. Honestly, I get it. We all want the biscuit to absorb as much of the chai it possibly can. Otherwise, it's just a hard-ass biscuit. We all love that cookie dough texture. And hence the importance of the dipping time. Dude, why the hell were you even fucking with me then? You could have just directly warned me instead of all this BS. My chai wouldn't have been ruined then. I could have, but I really wanted to see you fuck up your chai. Really, man? That's just sadistic. Maybe, but is it really that bad to want to see something interesting during a boring breakfast? Fuck it. I'm done with my chai. And with that kind of attitude, you kind of deserve a boring meal. Honestly, I wouldn't be surprised if you're sitting here all alone because you don't have any friends. Who needs friends when you have a good cup of chai? Right. Okay. Hi. I have a class. Right, yeah, bye. Knox. Hello, have you been hearing me? क्या? Don't act dumb. It doesn't suit you. Who? Look, honestly, I don't like the way you guys handled things that night. It got ugly and maybe you guys should sort it out. Now come on, call him.
कॉल तो वो भी कर सकता है. एंड ऑनेस्टली खन्ना, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज. ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं. लेट्स जस्ट फिनिश आवर मील एंड लीव. I think you should call him. सॉरी. Call your friend. वही बात चल रही है ना. Excuse me? This is a personal matter and shouldn't you just fucking let us be? अरे कोई नहीं यार, कर ले कॉल. Bro, did you not hear what he said? हाँ यार, I'm sorry I overheard the whole thing. क्या करूँ लेकिन, पुरानी आदत है. Do you believe this guy? यार बड़े अजीब आदमी हो तुम. पहले तो हमारे कॉन्वर्सेशन में इंटरफियर कर रहे हो और बेशर्मी की हाइट तो देखो, सीधा यहाँ के बैठ ही गए. इंटरफेयर नहीं, जस्ट फ्रेंडली एडवाइस टाइप्स कुछ. फ्रेंडली एडवाइस हो कौन बॉस? You're not from my batch. सीनियर? पहले कभी देखा भी नहीं. He's not in his third year. बट फोर्थ ईयर एट इतनी सुबह मेस में, वो भी नहा धो के. Beats me. अब बिंगो बोल के स्टैंडिंग ओवेशन दूँ क्या? एस्टैब्लिश हो ही गया है कि सीनियर हूँ तो चलो मिलाओ कॉल. रैगिंग ले रहे हो क्या? इफ़ दैट गेट्स द जॉब डन तो हाँ, वही समझ लो. अब चलो मिलाओ कॉल, चॉप चॉप. अरे कुछ नहीं यार, मिला ले कॉल. कम ऑन. He's not picking up. He won't. कोई नहीं, थोड़ी देर बाद वापस कर लेंगे, उठा लेंगे. बाय द वे, ऑन पेपर रैगिंग हो भी गई और मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा. चलो स्टार्ट द फॉर्मेलिटीज. Knox. नॉक्स. Nikhil. Mishra. Nikhil Mishra. और आप सर? खन्ना, ध्रुव खन्ना. अरे क्या बात है जूनियर. आई एम अमन, अमन खन्ना. और हाँ, मैं अपने फोर्थ ईयर में हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड अबाउट टू ग्रेजुएट इन 17 days. फोर्थ ईयर में हो और इतनी सुबह सुबह मेस में क्यों आए? हाँ यार, आज का दिन थोड़ा अलग है. वो कैसे? टुडे आई हैड द लास्ट लेक्चर ऑफ माई इंजीनियरिंग लाइफ, तो सोचा अटेंड ही कर लेते. बस वहीं से आ रहा हूँ. And how did that feel? बहुत वियर्ड था. आई नेवर थॉट कि एक ही लेक्चर हॉल में नॉस्टैल्जिया और गिल्ट साथ में एक्सपीरियंस करूँगा. नेवर इमेजिन. और योर फ्रेंड, उसका क्या नाम है? अर्जुन. एंड हाउ डिड यू गाइस मीट? Well, I remember कि Arjun and I met in first year. I still remember it was my first day on campus, and the moment I walked in to see my first ever hostel room, I was nervous as shit. I mean, even before coming to college, I had an idea of what hostel life is gonna be like, and I had mentally prepared myself for it. But in that moment, all of it felt so real. Like the feeling of me knocking on the room next to me and someone other than my parents answering, that was just so weird. In the end, I just remember lying on the bed and looking at the walls of my room. They'd been freshly painted and they did such a bad job that I could still see spots and patches of the dirtier wall it used to be. I could get a sense of all the people who must have lived here before me. That was just scary, but also kind of peaceful. Dude,
You have to kill a lizard for me. Oh, I'm Khanna, by the way. ओके, तो फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स क्लीशे है, बट मैं भी अपने दोस्तों से कुछ इस तरह ही मिला था. तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, चलो कॉल मिलाओ अर्जुन को. अरे यार, आप फिर शुरू हो गए. नो लाइक सीरियसली दो, आपका एंगल क्या है? एंगल एंगल तो कोई नहीं है. कुछ तो होगा. एंगल का तो पता नहीं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है. कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम विद द होल थॉट कि क्या होता अगर आज का लास्ट लेक्चर चला गया होता. क्या होता अगर सचिन कल्पना को बता देता कि वही संजय सिंघानिया है. क्या होता अगर आज अर्जुन यहाँ आ जाता. क्या होता. और मेरी मानो तो व्हेन इट कम्स टू दिस स्टफ, आई मीन फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, टाइमिंग बहुत कुत्ती चीज़ होती है. एंड इन सब मामलों में ना अक्सर देर नहीं करनी चाहिए. What makes you say that? बस एक्सपीरियंस समझ लो. एक्सपीरियंस या गिल्ट? जो समझना है समझ ले भाई. पर कुछ तो बेसिस होगा ना. एक स्टोरी है, सुनोगे? नहीं, पर आप फिर भी सुनाओगे, so why not? माइंड यू, बट ये बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है. ये कहानी है एक हाईवे, एक सिगरेट और बहुत सारे खून की. लेकिन एक सेकंड, इस कहानी को जानने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके कैरेक्टर्स और बैक स्टोरी को जान लें. अरे यार भैया, इतना टाइम तो नहीं है. थोड़ा हो सके तो शॉर्ट में बता दो. थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई. सो इस कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं देव. By the way, Nox, how did we meet? What? You don't remember? Really, that's how we met? Yep, Wow, that is not a good story. it is not. Maybe we should change it to something less offensive. Yes, we should. ये सब हो गया तो मैं कंटिन्यू करूं? आई डोंट लाइक पीपल इंटरप्टिंग मी यार. सारा फ्लो खराब हो जाता है. सो एनीवेज, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर देव, मिहिर, लक्ष्य, वेदांत एंड ऑफ कोर्स मी. ये कहानी है हमारे सेकेंड ईयर की. देयर वाज अ फेस्ट हैपनिंग इन गोवा एंड ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स वर गोइंग देयर. तो वी थॉट कि चलो हम भी चलते हैं. लेकिन बाकी लोगों के साथ ट्रेन में जाने से अच्छा वी थॉट डूइंग अ रोड ट्रिप वुड बी कूल. फुल दिल चाहता है वाइब्स. तब हमें लगा था कूल होगा, बट वी नेवर न्यू. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी रेंटेड अ कार एंड द 5 of us वर ऑन द रोड. और एकदम सन ग्लासेस लगा के पंजाबी म्यूजिक फुल वॉल्यूम, हम सब मस्त करेक्टर में घुस गए थे. अब आगे की कहानी जानने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हमारी पोजीशंस विद इन द कार. सो गाड़ी मीर चला रहा था. आई वाज एट द बैक सेंटर में. मेरे लेफ्ट में था लक्ष्य शायद, राइट में देव एंड आगे वेदांत. एंड वी बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल एंड देन वी डिसाइडेड कि नो वेट अ सेकंड. मेरे राइट में था लक्ष्य. हाँ ठीक है, लक्ष्य मेरे राइट में था. सो वी हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल एंड गोवा वाज स्टिल अराउंड 5 hours. So we thought that we'll take a pit stop and go somewhere to eat. And after we decided that, Dev said कि एक सेकेंड. How did Dev say it? नहीं अभी पोजिशनिंग में कुछ गड़बड़ है. अच्छा, तेरा और मेरा याद आ गया. मेरा और अर्जुन का है नो. हाउ डिड यू एंड अर्जुन मीट? हाँ, जब तक मैं पोजीशंस फाइनल कर रहा हूँ तुम लोग ये सब कर लो. वही मतलब फर्स्ट ईयर में आई वाज. अर्जुन,
हाँ वही फर्स्ट ईयर में. अर्जुन, कहाँ था तब से? और फोन कहाँ है तेरा? हाँ वो साइलेंट पे था, सुबह से चेक नहीं किया. दिस इज अर्जुन बाय द वे. ओह, तो आप हैं अर्जुन. हाय, आई एम अमन. फोर्थ ईयर. ओह हाय. कम, जॉइन अस. So Aman was telling us a story of his second year road trip with his friends Lakshay, Mihir, Dev and Vedant. Vedant. Yes, Vedant was sitting on my right. So anyways, let's get back to the story, but उससे पहले अर्जुन को एक क्विक रिकैप दे दो यार स्टोरी का जल्दी से. Friends, road trip, highway, pit stop. That's pretty much it. So, we enter the service lane and we start looking for restaurants. तब देव कहता है कि चलो बर्गर खाते हैं. And this starts a minor argument in the car. कोई कह रहा है बर्गर खा रहे हैं, किसी को ढाबे पे रुकना है and what not. तभी सडनली सामने से एक बाइक आती है. And Mihir, who was driving the car, was so focused in the food war कि वो देखता ही नहीं. And as soon as he realizes, वो impulsively स्टीयरिंग को राइट की तरफ घुमाता है और हमारी गाड़ी बहुत तेज स्पीड से जाके डिवाइडर पे क्रैश हो जाती है. तो अब खाली सर्विस लेन के बीच में एक गाड़ी क्रैश होके खड़ी है. एंड ये सब इतना फास्ट हुआ कि व्हाट, व्हाई, हाउ कुछ समझने का टाइम ही नहीं था. बल्कि बहुत सारी डिटेल्स तो आज तक डिबेटेबल है. लाइक आई फॉर वन बिलीव कि गाड़ी 0.5 सेकेंड्स के लिए हवा में थी. एंड उस सब के बाद आई जस्ट ब्लैक्ड आउट फॉर अ सेकेंड. एंड व्हेन आई केम आउट, देव और मिहिर गाड़ी के बाहर खड़े थे एंड एवरीथिंग वाज डूम्ड. एंड टू मेक इट ऑल वर्स, हमारी गाड़ी का राइट साइड पूरा उड़ चुका था. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड ऑन द विंडो. Oh shit. On investigating further, we find out कि Vedant's arm was bleeding badly. Surprisingly, बाकी सबको इतना कुछ नहीं हुआ था physically, but it's important to know कि none of our parents knew कि हम लोग इस रोड ट्रिप पे थे. No way. उन्हें तो लग रहा था कि हम किसी ट्रेन की बर्थ पे बैठ के अंताक्षरी खेल रहे होंगे. Damn. फिर what do you guys do? जब सबका 3-4 सेकंड का शॉक खत्म हुआ, तो वी मेड श्योर सबसे पहले तो वेदांत हॉस्पिटल जाए. एंड लक्ष्य वेंट विद हिम व्हाइल द रेस्ट ऑफ अस सैट नियर द कार. एंड वी थॉट कि अब साला इस गाड़ी का करना क्या है. Makes sense. सो नाउ सीन ऐसा है कि मिहिर इज स्टैंडिंग नियर द कार एंड इज कॉलिंग द रेंटल कंपनी फॉर इंश्योरेंस एंड ऑल. देव एंड आई आर सिटिंग एंड देयर इज लॉट्स टू डू. इंश्योरेंस, कार की टोइंग, पॉसिबल पुलिस बीटी. हमको थोड़ी प्रोटोकॉल पता था. बच्चों पहला एक्सीडेंट था आफ्टर ऑल. एंड इस सब के बाद हमको ये भी फिगर आउट करना था कि हाउ टू गेट टू गोवा. बाय द वे, इस ट्रिप में ऑलरेडी काफ़ी पैसे लग चुके थे. एंड इस सब के बीच में सबसे पहले क्या करना है वो भी समझ नहीं आ रहा था. तो फिर आप लोगों ने किया क्या? सो देयर वाज अ शॉप नियर बाय. दे वेंट अप टू इट एंड उसने एक सुट्टा लिया. वी लिट इट अप एंड स्टार्टेड स्मोकिंग. द फर्स्ट सिगरेट ऑफ माई लाइफ. First and last? हाँ, sure. First and last. So, anyways, we started smoking and then we divided the work. We get to our respective calls, but we can notice that Mihir was getting tensed as fuck. And we knew that this was because, although no one said it, but he kind of blamed himself for all of what happened. And he wanted to make it all go away. Dev और मैं ये देख रहे थे, but we couldn't really do anything about it. Because there was a slight issue. What? You see, an important element of this story is the night before. अरे यार, not again. अरे शॉर्ट में बताता हूँ. So the night before we were all sitting together and Dev made a silly joke about Mihir's then girlfriend, upon which Mihir got offended and they had a minor spat. Because of this, there was tension between them throughout the trip. So even though on paper they both could walk up to each other and talk, but ये साली male ego. So because of this, Dev couldn't go and maybe for the same reason, even Mihir भी हमारी तरफ चल के नहीं आया. What happened then? How do you guys come out of all of that?
लाइक आई सेड बिफोर, इन सब मामलों में टाइमिंग बहुत कुत्ती चीज़ है. Somehow Dev got up and he went up to Mihir and said something. They talked, and when they came back, I swear to God, I saw Mihir smiling. What did he say? I'm sure he must have apologized or something. किसने क्या बोला, किसने सॉरी बोला, ये तो मुझे नहीं पता. इनफैक्ट जब मैं देव से पूछता हूँ तो आज तक मुझे ढंग से बता नहीं पाता कि उसने बोला क्या था. अरे कम ऑन, ऐसे कैसे? कुछ तो बताया ही होगा. तो आई ऑनेस्टली डोंट, बट मे बी वी कैन फाइंड आउट. How? तुम लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी है. आज देव का प्लेसमेंट इंटरव्यू है, विच अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस 20 मिनट पहले ओवर हो गया होगा. एंड आई आस्क्ड हिम टू कम ओवर टू अस. सो आई जस्ट कॉल हिम अप, एंड तुम लोग अगर थोड़ा सा प्रेशर डालो तो ही माइट केव इन. हाँ, किधर है? आ गया. सुन ना, लेफ्ट साइड में कम टू दैट टेबल इन द कॉर्नर. हाँ हाँ, आजा आजा. Didn't you have an interview? Oh, I already got an offer from the company I interned at. Congratulations. Oh, damn, congratulations. So, how did it go? अरे बैठो ना. अब तो बता, कैसा गया? Okay. I think I'm getting placed today. Oh, Oh, congratulations. वाह, इतना श्योर? हाँ यार, the interview went well. Like, I had a good chat and it was like one of those moments of destiny, you know? Like, everything felt just right. Plus, I asked the interviewer for my feedback and he said it's a yes. But yeah, also a destiny thing, yeah. चलो फिर तो बढ़िया है. अच्छा, बाय द वे, दीज आर आवर जूनियर्स. Hi. तो इनका एक सवाल था तेरे से. मुझसे? Okay. What did you say to Mihir that day What day? on the highway? Highway? Wait. Do they know that? Wow. Okay. So I just walked over to Mihir that day and I looked him in the eye and said कि भाई देख, मेरे पास अभी चेंज नहीं है, तो क्या तू सिगरेट के पैसे दे सकता है? I don't buy it. That's what I said. By the way, how do you guys finally make it to Goa then? हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, but somehow we were lucky enough to find one of those semi-open tempo/truck kind of things. Made it to Goa at the back of a tempo. That's wild. हाँ, शायद लेट हो रहा था तो उस बंदे ने हमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगे एंड इस सब के बाद तो वी जस्ट हैड टू गेट आउट ऑफ देयर. पता है, उस टेम्पो के पीछे ना, आफ्टर अ वाइल वी वर ऑल काइंड ऑफ स्माइलिंग डिस्पाइट एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड, बिकॉज आई थिंक कि मे बी एज अ ग्रुप वी काइंड ऑफ फेल्ट दैट कि फक यार, कितना कुछ देख लिया है साथ में, मतलब लिटरली डेथ एस्केप करके आ रहे हैं. ऐसे में कोई भी छोटा मोटा झगड़ा क्या ही मैटर करता है. अच्छा चल, वो सब छोड़. ये बताओ, when are we celebrating? अरे पहले कंफर्मेशन तो आने दो, कर लेंगे सेलिब्रेट. अरे कुछ तो करते हैं यार. चल कम से कम एक चाय टोस्ट ही कर लेते हैं. ओके, दैट वी कैन डू. अच्छा वेट, मैं सबकी चाय रिफिल करके आता हूँ. I'll help you. You know what makes breakfast at mess so interesting? What? If you look around, you'll see two groups of people. एक ग्रुप है जो रात भर नहीं सोया और
फीफा ऑल नाइटर के बाद शायद अपना लास्ट मील ऑफ द डे मेस में करने आया है. एंड देयर इज दिस अदर ग्रुप जो सुबह उठ के फ्रेश होके अपना दिन मेस से स्टार्ट करने आया है. And what group do you belong to? For majority of my college life, I was in the first group. But I think this time, because of placements and all, शायद automatically group 2 में आ गया. How many interviews have you given? Today was my 5th interview. 5th? Wow, that's crazy. Yeah, it is. It also means that I've faced 4 rejections this time alone. Damn. How do you deal with it then? पता है जो मेरा पहला इंटरव्यू था ना, इवन सो वेल कि मैं तो 100% श्योर था कि मैं तो सेम के स्टार्ट में ही प्लेस हो रहा हूँ. बट आई डिडंट, एंड इट हैपेंड अगेन फॉर 3 more times. पहली बार तो जनरली बहुत बुरा लगा था, बट मे बी उसके बाद शायद इम्यून हो गया मैं. लाइक आई रिमेंबर जो मेरा लास्ट इंटरव्यू था उसके रिजेक्शन के बाद तो आई जस्ट हैड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई हैड टू गेट डन. एंड लाइक मेरे को पासपोर्ट रिन्यू कराना था, हैड टू गेट अ हेयर कट, मेरी मॉम का कुछ रैंडम काम था. एंड आई जस्ट woke up the next day and got to that list. And I've been doing that daily since then. In fact, आज भी इंटरव्यू के पहले मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी. I just looked at it as something on my list and I try to have fun while doing it. अब सोच रहा हूँ कि कॉलेज के 4 साल यही एटीट्यूड होता तो क्या होता. 4 साल? Wow. If I may ask, at the end of it all, after everything, how do these 4 years feel like to you? Do you know what a vomit comet is? Not really. चलो, joining the astronomy club wasn't a bad idea after all. तो स्पेस में जाने से पहले ना एस्ट्रोनॉट्स आर मेड टू ट्रैवल इनसाइड एन एयरप्लेन जो ऐसे रैंडमली फ्री फॉल करता है ऊपर नीचे बहुत तेज टू रेप्लिकेट ज़ीरो ग्रेविटी. उस एयरप्लेन में इतने चक्कर आ सकते हैं किसी को भी कि you're almost guaranteed to vomit, and hence its name. But maybe it prepares you for much worse. That's what these 4 years feel like to me. A vomit comet. हाय अर्जुन, कैसा है? Oh, hi, Tejas. Wow, you woke up in time for breakfast. ब्रो पूरी रात नहीं सोया. Watch 2 seasons of Family Guy. Just going to have some breakfast and I go to sleep. Right. चलो, see you guys. Cool. That was Tejas. I know him. चले? Cool. So, तुम लोग के कुछ प्लान्स? कोई प्लान्स, हॉबीज, कोई स्पेशल टैलेंट? I play the piano. I mean, I used to. It's been a couple of years, but yeah, I enjoy it. That's nice. छोड़ा क्यों? पता है देव कहता था फर्स्ट ईयर में, 3 इडियट्स ने इस दुनिया को रैंचो दिए हो ना दिए हो, साला फरहान कुरैशी बहुत दिए है. और फिर तू क्या कहता था याद है कि हर इंजीनियरिंग मेजर का एक बाय डिफ़ॉल्ट माइनर इन फिलोसफी तो हो ही जाता है. Anyways, whatever the reason is, it doesn't really matter. I hope you get over with it, because वापस से स्टार्ट करने का इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा. लाइक हमारा फ्रेंड है ना वेदांत, उसने 2nd ईयर में ही डिसाइड कर लिया था कि माँ चुदा इंजीनियरिंग डिज़ाइन करेंगे. एंड वो सब कुछ छोड़ के मैन जस्ट स्टार्टेड बिल्डिंग हिज प्रोफाइल, एंड रिसेंटली ही गॉट एक्सेप्टेड इनटू अ डिज़ाइन स्कूल. Oh, that's nice. और तुम लोग, तुम्हारे कोई प्लान्स, एनी हॉबीज, एनी गर्लफ्रेंड्स, एनीथिंग? एक्चुअली ठीक ही है, तुम्हारे टाइम पे हमारा भी सेम ही हाल था. बट यू विल गेट प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. Eventually, I guess you will find your thing, or it will find you and you won't even realize it. Khanna is the best example of this. मैं? I mean, my Khanna. Talk about being resourceful, man.
भाई बंदे के कॉन्टैक्ट्स तो हैं. मतलब मुझे याद है एक बार मैं रात को लेट आ रहा था कैंपस और गेट्स पे चेकिंग होती है एंड द सिक्योरिटी गार्ड फाइंड्स अ बॉटल ऑफ बियर इन माई बैग जो कि मुझे याद भी नहीं कहाँ से थी. एंड इन दैट मोमेंट आई वॉज लाइक कि भाई अब तो सब फक है. ठीक है, मतलब आई कुड सी माई इंटायर लाइफ फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माई आइज. मुझे मेरे सारे पाप दिख रहे हैं एंड समहाउ माई पेरेंट्स आर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑल ऑफ देम एंड आई वॉज लाइक कि भाई आज तो मैं गया. बट देन खन्ना लुक्स एट द सिक्योरिटी गार्ड एंड डज दिस and he just lets me go. That's when I realized his thing is magic, yaar. बट हाउ कैन यू नो फॉर श्योर कि 4 साल के एंड तक you'll find something? I mean, टाइम कम पड़ गया तो. यार पहले ना मैं भी ऐसे सोचता था कि आफ्टर आई गो विल आई बी रिमेम्बर्ड. पर फिर बाद में रियलाइज हुआ कि बहुत ही ईगोइस्टिक और चूतिया बात है. आई मीन लुक अराउंड, दीज फेसेस आई डोंट नो देम एंड दे डोंट नो मी. यही होता है, फेसेस चेंज, स्टोरीज चेंज, सब बदल जाता है. Except for Mess ka menu, of course. That's there. But if somehow you're able to find your people, your stories, then the rest doesn't really matter, I guess. Like फिर आज मेस में हो या कल कहीं और. Like I know where my friends are at. अब वेदांत डिज़ाइन कर रहा है, लक्ष्य मुंबई में है, पर वो विनोद क्या कर रहा है? I think जॉब कर रहा है शायद. 16 का पैकेज. सी वही विनोद 16, क्षितिज 14, राहुल 20, बाकी सब बस नंबर बन के रह गए हैं. अरे बाय द वे मिहिर भी तो मुंबई में है ना. No, he got his paper accepted ना. He's going for his masters to US. अच्छा. Oh, Wait, how come you didn't know that? don't know, just lost touch, I guess. अरे क्या कर रहा है यार? अब देख, you'll make it worse. अच्छा, बाय द वे, शुडंट वी लीव? एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ना है. चले. हाँ यार, इसका तो रोज़ का है. तुम लोग निकलो. चलो, सी यू, बाय. So, got placed. got placed. So now what? देखते हैं. कहाँ था तब से? कहीं नहीं यार, बस यहाँ वहाँ. Took some time to think about things. Think about things? हाँ. Also, once this is all over, I think we should go somewhere. On a trip or something. एक सेकंड, तू और ट्रिप पे जाने की बात कर रहा है? भाई तुझे हो क्या गया है तो ठीक तो है ना? मे बी वी शुड हैव अ फाइट एवरी नाइट. Nox, तू आ रहा है ना?